پیچھے لگا
भी नाम खुश कर रहा हूँ। इसी तरह शामिल हो जाएगा। जिस तरह आपकी गूंज मस्जिद में बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह आका तक फरियाद पहुंच जाएगी, क्या पता आका तशरीफ फरमा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तो हमारा अकीदा है कि आका मदीना पाक में नमाज फरमा रहे हैं, तो अकीदा है तो इंशाअल्लाह मिलकर शामिल हो जाएगा। क्या आपको फरमाते चाहे पड़ेगा वो बता रहे परेशानी सामने रखते हैं। आका बड़ा परेशान हुआ, अब तो करम करवा
حشر دونوں عالم کے سرکار یہ اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے شام غربت شرق معاشرت شام غربت
ماشاء اللہ اللہ سے اور ہمت طاقت جو پڑھ رہا ہے دل خوش ہوتا ہے تو اور خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے نعت خوانوں کو ہمت طاقت ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں کہ باتیں آپ سے بھی ہو جائیں, اس کی رحمت کی تو اور بھی مزہ آئے گا, اور بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کے بعد دو ہوگی, صلاۃ السلام ہوگا, 3:15 ہو جائیں گے تو سہری شروع کرا دیں گے. لوگ کھائیں گے, چائے پیئیں گے, بہت سارے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں تو سارے کام نکل لیں گے. اور یہ گزارش ہے, کھانے کے بعد سونا نہیں ہے, فجر کی نماز پڑھ, بس ساری چیزیں اپنی جگہ, فجر کی نماز اپنی جگہ, تو فرض ہے نا. بس ہوتا گیا ہے سہری کھا کے لوگ سو جاتے ہیں, اپنی پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو اس طرح توجہ دیا کریں, اس طرح مت کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی جستجو ہے تو صحیح ہے کہ جستجو جو ہے ہمارا آ جائے, پورا پورا کام ہو. کتنا ہے, 1-2 گھنٹے اور صحیح, وہاں اتنا صحیح, وہاں 2 گھنٹے اور صحیح. اللہ کی بارگاہ پھر فجر پڑھ کے جو سوئیے گا, پھر 2 دن کے بعد بھی اٹھیں, یہ دوہر تک اٹھیں, کوئی مسئلہ نہیں کہ دوہر بھی تو پڑھنی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی بے حساب و کتاب ہے. انسان بڑا تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوالی بھی دیکھیں, ایک آدمی, یہ کرم نوالی کی بات ہے, اللہ اس کا رسول کس طرح کرم فرماتا ہے, کیسے کرم کی بات ہے. ایک آدمی خواجہ معین الدین چشتی, ابھی کلام پڑھا گیا, حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے نا, ایک آدمی کر رہا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک, جو یہ کہہ رہا اللہم لبیک تو آواز آ رہی ہے لا لبیک, یہ کہہ رہا یہ میں حاضر ہوں, اللہ فرما رہا تو حاضر نہیں ہے. وہ کہہ رہا میں حاضر ہوں, اللہ کہہ رہا تو حاضر نہیں ہے. آوازیں آ رہی ہیں, اللہم لبیک, وہ کہہ رہا ہے لا لبیک, کہہ رہا لبیک, وہ کہہ رہا لا لبیک. بڑا پریشان ہوں. اس کو صاحب پہ لے کے خواجہ صاحب کہنے لگے کیا بات ہے, کہہ رہا 24 سال سے آ رہا ہوں, ہر سال حج کرتا ہوں, ہر سال آ کے کہتا ہوں اللہم لبیک, اللہ کہتا ہے لا لبیک, تو حاضر نہیں ہے, تو قبول نہیں ہے. بڑا پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خواجہ صاحب نے جس سے جو کیا, اللہ 24 سال اللہ فرمایا میرا اور میرے بچے کا معاملہ ہے, تم سے اللہ کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے. یہ نہیں آدمی پریشان ہے تو وہ کہے کہ نہیں اللہ کی ناراضگی میں آ چکا ہوں, وہ یہ کہے میں پریشان ہوں تو اللہ کے غصے میں آ چکا ہوں, کسی غلطی کی سزا میں لینے نہیں. وہ کہنے لگا کیوں, یہ اللہ تو منع کرتا ہے اس کا, یہ تو حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے میرے بندے, یہ 24 سال سے حج کے لیے آ رہا ہے, ہر سال اللہم لبیک کہتا ہے, میں لا لبیک کہتا ہوں, یہ اگلے سال پھر آ جاتا ہے, یہ اگلے سال پھر آتا ہے. میں لا لبیک کہتا رہوں, میرا کرم نوازی ہے, میں چاہتا ہوں لا لبیک کہتا رہوں. یہ ہر سال میرے پاس حاضری دیتا ہے. یہ ہر سال میں جس دن میں نے کہہ دیا نا لبیک, ہاں بندے تو حاضر ہے, تو اس دن یہ اس کے بعد نہیں آئے گا. میں لا لبیک کہتا ہوں, یہ جستجو میں اور بڑھتا ہے, ہر سال آتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ ہر سال ہی میرے پاس آتا ہے. اس لیے کرم نوازیاں تو ایسی ہوتی ہیں. اور یہی آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کی باتیں سنیے. آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں, ایک ادھیاپی, اب آپ کو پتا ہے ادھیاپی کیسے ہوتا ہے, بہت زیادہ سمجھ تو ہوتے نہیں ہے, دیہات ہوتا ہے, وہ اچھی آواز میں بات کرتے ہیں. ایک دیہاتی نے اسلام قبول کیا, اس نے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھا. اب وہ مکہ میں آیا آقا سے ملنے کے لیے. اب اسے پتا نہیں آقا کون ہے. وہ خانہ کعبہ کا حج کر طواف کرنے شروع ہو گیا, پتا آقا یہیں ملیں گے. وہ دیہاتی حج کرنا شروع ہو گیا, وہ اب چلتا جا رہا ہے, طواف کرنے کے لیے یا کریم اللہ کو پکار رہا ہے نا, اور آتا ہی کچھ نہیں, یا کریم. اب آقا نے دیکھا یہ دیہاتی, وہ آقا بھی اسی ہوئے اور حرم میں موجود تھے, وہ آگے چل رہے ہیں یا کریم, آقا پیچھے, آقا بھی آواز لگا رہے ہیں یا کریم. وہ لگا رہا ہے کہ آواز یا کریم, پیچھے آقا بھی چل رہے ہیں یا کریم. جب آقا نے وہ دیکھا نا, تو دیہاتی نے کوئی میرے پیچھے میرے نقل اتارا, اپنا غصے سے دیکھا آقا کی طرف, اس نے بڑے غصے سے دیکھا آقا کی طرف, پھر آگے چل پڑا, پھر کہتا یا کریم, پھر آقا نے پیچھے سے کروا یا کریم. یہ مزے کی بات ہے نا, یہ محبت کی باتیں ہیں. امت سے محبت ہو رہی ہے, ایک عام آدمی سے محبت, جس کی جان نہ پہچان, آگے بتاؤ گا یہ وغیرہ یا کریم. پھر اس نے غصے سے دیکھا, پھر آگے چل پڑا, پھر آگے چلا تو پھر اس نے کہا یا کریم. آقا نے پھر پیچھے کو فرمایا یا کریم. اب وہ آقا کے پاس آیا, کہ بھائی میری نقل نہیں اتارنا, میری نقل نہیں اتارنا. اگر تم نے میری نقل اتارے نا, میں تمہیں بہت کچھ دیر تک کہہ دیتا, لیکن تمہارے چہرے پر نور اتنا کچھ کہنے کا دل نہیں کرتا. تمہارے
मेरी नकल नहीं उतारना, मेरी नकल उतारे ना तो मैं अपने आका से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मैं अपने आका से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। उसने कहा अच्छा किस आका के गुलाम हो? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। कहा उनको देखा? कहा नहीं उनको देखा नहीं है मैंने, मैं पहली दफा गांव से इस्लाम फैला था, वहां से कलमा पढ़ के सीधा आ गया हूँ, अब उनसे मिलने आया हूँ। आका मुस्कुरा दिए, आका मुस्कुरा दिए। आका ने फरमाया ए मेरे बंदे, ए मेरे दोस्त, ए मेरे सहाबी, तूने कलमा पढ़ के मेरी ज़ियारत की है, मैं ही तेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं ही तेरा आका हूँ। आका के कदमों में गिर गया, गले मिला। अभी आका वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब से कहो इसका थोड़ा सा हिसाब किताब होगा, अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिल कर देगा। इसका थोड़ा अभी उसने किया ही कुछ नहीं है, कलमा पढ़ के सीधा आ गया, ना नमाज़े ना कुछ, न रोजे न ज़कात दी न हज किया, और क्या किया होगा? अभी तो वो आ ही आया था। उसने कहा था भाई अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका थोड़ा सा हिसाब किताब होगा, इसे जन्नत में भेज दूंगा। तो उसने कहा अल्लाह ने सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े से कहा देखो अल्लाह ताला फरमाता है तेरा थोड़ा सा हिसाब किताब होगा तो जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? जाते तो था ना, अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? हाँ अल्लाह मेरा थोड़ा सा हिसाब लेगा। तो नहीं, अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा, अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा। आगे तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो तेरा हिसाब लेगा ही लेगा, फिर अपने कायनात का हिसाब कैसे लेगा? उसने कहा आका वो मेरे गुनाहों के बारे में पूछेगा, मैं उसकी रहमत का तलबगार हो जाऊंगा। वो मेरे गुनाहों के बारे में पूछेगा, वो हिसाब किताब करेगा, मैं उसकी रहमत को देखता रहूंगा, मैं उसकी रहमत का तलबगार, मैं उसकी रहमत का सवाल करूंगा। तो रहमत क्यों नहीं भेज रहा मेरे पे? अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ये मेरे से ऐसी उम्मीद रखता है, अल्लाह ने इसको भी हिसाब किताब बख्श दिया। ये करम की बात है, इस उम्मत पे बड़ा करम है, बड़े रहमतें हैं। बातें तो आप सुनते ही हैं ना, बड़ी करम की बातें हैं, याद रखिएगा हमेशा। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने, ये हम एक एक दिन मनाते हैं, आज मदर डे गुजरा, मदर डे गुजरा ना, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मदर डे गुजरा। हम एक दिन, क्योंकि ईमान वाला एक दिन मदर डे नहीं मनाता, उसका तो हर रोज ही मदर डे होता है। उसका तो माँ से मोहब्बत का तकादा यही है। इस्लाम ने जो हमें सिखाई है तो दुनिया भी मदर डे मनाना शुरू हुई है ना। इस्लाम ने तो हमें 1400 साल पहले यही तारीफ दे रखी थी, तुम्हारा हर डे इश्क रसूल में गुजरे और मदर डे खुद गुजर रहेगा। जो इश्क रसूल में होता है तो वो माँ से गुस्ताखी कर नहीं सकता, और माँ बाप से गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बड़ी मोहब्बत से उनके साथ रहना चाहिए। वो बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए, देखे ना जब आप बचपन में थे आपकी गंदी चढ़िया धोई किसने? आप मोहब्बत का तकाजा है ना ये। अगर किसी बच्चे की नाक निकल रही हो, नाक निकल रही है किसी बच्चे की, वो आपका बच्चा नहीं, आपको खिलाएगी, लेकिन उसी बच्चे के सामने जब उसकी माँ खड़ी है वो अपने हाथ से भी उसका नाक को साफ कर देगी। ये मोहब्बत के तकाजे हैं। जब तुम छोटे थे तुम ठंडी रोजाना सर्दी में भी अपनी पेपर खराब करते थे, सलवारें खराब करते थे, पेशाब करते थे, सब कुछ करते थे, वो माँ ही हुआ करती थी, सब कुछ अपने हाथों से धोकर वो भी नहीं किया करती थी, धोया करती थी। आज तक तुम बड़े हो गए तो उसको नाराज करने लगे, उसके आगे थे तो बेबाकरारी करने लगे, तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला को सब नापसंद है। जहाँ उसने अपनी इबादत का हुक्म दिया, वह माँ बाप से उसने सलूक का हुक्म दिया। ये होता है। हमें अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला, मैं आम आदमी की बात ही नहीं करता ना, मैं साहब रसूल पे पूछ लिया। तो इस जमाने में आपको लेकर चलता हूँ साहब रसूल के पास, नौजवान तबका मेरे पास बैठा है ना, उसमें 90% ऐसे हैं जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं, अल्लाह उनका साया तादीर उनके सर पे कायम रखे, और जिनके वालिदैन गुजर गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिए मेरी बात को, हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला आखिरी वक्त आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हज़रत बेलाल को, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को, जाओ कलमा पढ़ो जाकर। वो गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफी देर हो गए, हम कलमा पढ़ाते उसकी ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा, उसकी ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं चलता हूँ। आका उसके घर पे तशरीफ ले गए। जब उसके घर पे तशरीफ ले गए ना, वो कहा कौन है इसके घर पर? कहा इसकी बूढ़ी वालदा है। कहा ले आओ, उसकी बूढ़ी वालदा को लेकर आ गए। कहा ये कौन? कहा मेरा बेटा है। कहा क्या करता है? कहा आका करता क्या है? 5 वक्त
वक्त की आपके पीछे नमाज पढ़ता है, काली काली जुल्फों को देख के नमाज पढ़ता है, वक्त दुहा के चेहरे को देखकर दुआ करता है, जुम्मा आपके पीछे, नमाजें आपके पीछे, हज आपके साथ, कुरान का कारी है, गाजी जो जहाज पे आपके साथ जाता है, गाजी है, सारे काम करता है, रात को उठ के तहज्जुद में नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है। आगे जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं पूछता ये इबादत क्या करते कैसी करता है, मैं ये सिर्फ पूछता हूँ तेरे साथ हुस्न सुलूक कैसा है, तेरे साथ क्या करता है, तेरे साथ सही है या नहीं। उसने कहा आका मसला सिर्फ इतना है, ये मेरे साथ बदतमीजी करता है, इसकी ज़बान से ऐसे सख्त अल्फाज निकल जाते हैं जो मुझे नागवार गुजरते हैं, इसलिए मैंने इसको माफ नहीं किया, ये बड़े दबाव दराजी करता हूँ मुझसे। आगे जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माँ इसको माफ कर दे, जब तक तू माफ नहीं करेगी रब कायनात भी इसको माफ नहीं करेगा, तो माफ कर देगी तो अल्लाह ताला इसको माफ कर देगा। उसने कहा आका मैं इसको माफ नहीं कर सकती, इसने मुझे बड़ी तकलीफें दी है। आगे जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी लकड़ियां लेकर आ जाओ, लकड़ियां आ गई, फरमाया इसमें आग लगाओ, फिर इसमें आग लगा दी गई। आगे जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको उठाओ, उठाकर आग में फेंक दो, सहाबा उसको उठाकर आग में फेंकने लगे। जब आग में फेंकने लगे इसने कहा आका बात तो फिर माँ होती है, तड़प गई, आंखों में आंसू आ गए, माँ के आका के कदमों में गिर गई, आका मेरे बेटे को आग में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। कहा माई ये तो इस आग की बात करती है, अगर तूने माफ ना किया तो इस आग में जलना पड़ेगा, इसलिए इस आग से बचाना है तो इसे माफ कर दे। आका जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला तो इस औरत ने कहा मैं आपके रूह को इसे माफ करती हूँ। अगर अनस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि रवायत करते हैं अभी आका ने फरमाया, उस औरत ने फरमाया मैंने इसको माफ किया। और अनस फरमाती है आका ने अभी चेहरा पलट कर जाने के लिए पलटा ना था, हमने अपने काने से सुना, उसकी ज़बान से कलमा जारी हो गया, उसकी ज़बान से कलमा जारी हो गया, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद पढ़ना शुरू हो गया। एक सहाबी रसूल की ज़बान से अगर कलमा जारी नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं हमारा कौन सा बल। जब तक कुरान में आया तो मैंने मुफ्ती अबू सुभान काफी साहब से पूछा, मैं अपने साथ से पूछा साहब मुझे बताइए तो अल्लाह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तदर्रुहुमा वला तमहरुहुमा, ये कुरान पाक में आया। अब के क्या मायने, हम तो करते ना तो ये क्या हो, इसकी कोई तशरीह होगी, आखिर किस बात पे उफ करें, क्या नाराजगी होती। तो उन्होंने फरमाया था मुझे बड़ी अजीब सी बात कही, कहा 7 गर्मियों का दिन कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का रुतबा कैसे रखा है। आकर के जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, जिसका बाप राजी होता है वो मुझसे राजी होता है। ये आकर के जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप बाप को नाराज करते हैं फिर रब को राजी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फरमाया जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी। और माँ के बारे में जब वहां पर मैंने पूछा कि उफ़्र वाला तन होगा, ये माँ बाप के बारे में ना, उफ़्र वाला तन होगा तो उफ़ना का हो तो उफ़ क्या है। उन्होंने मुझे एक तशरीह बताई, मैं आपको बताता हूँ। और मुझे तशरीह ये बताई कि 7 गर्मियों का रेगिस्तान है, रेगिस्तान में 7 गर्मियाँ हों, वो सुबह फजर के बाद खड्डा खोदना शुरू करे अपने काम के लिए मजदूर, खड्डा खोदता रहे, पानी ना मिले, पानी वो इसको ना मिले, खड्डा खोदता रहे, खोदते खोदते खड्डा जब शाम हो जाए उसे खाने को भी ना मिले, सुबह से शाम तक मजदूरी करता रहा, थक हार गया इतना कि हलक कांटा सूख रहा है, हलक सूख रहा है, कांटे लग रहे हैं, ऐसा कि अभी गिरा अभी गिरा। जब घर में दाखिल हुआ, घर में दाखिल होने के बाद माँ ने कहा बेटा मुझे ये ला दो, उसने कहा वो जाके काम कराया, फरमाया इस उम्र पे भी पकड़ हो जाएगी, इस उम्र पे पकड़ हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम तो दोस्तों को गलियों में बैठकर दोस्तों से बात, माँ ने कह दिया बेटा जल्दी घर आ जाना, तो हम माँ का क्या हाल करते हैं, माँ को नींद नहीं आती, बेटा जल्दी घर आ जाना, बेटा सो जाना, सुबह उठ के काम पे जाना, तो हालात ठीक नहीं घर आ जाना। लेकिन हम माँ बाप के साथ कितनी बदतमीजी कर जाते हैं। सही है हम नमाजी हैं, हम कुरान के कारी हैं, हम तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस सहाबी रसूल को भी देख लें, हम अपने आप को देख लें। हमने माँ बाप आकर भी यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधी रात का वक्त जो मुफलिस हो, तंदुरुस्त हो, मुहताज हो, बीमार हो, जिसकी परेशानी नहीं जाती हो, आकर भी यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधी रात को उठकर अपने माँ बाप के कदमों को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह उसे गनी फरमा देगा। ये हदीस है, बात है, अल्लाह से गनी कर देगा। हमारे घर में
इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की मौजूद हैं, उनको ना छोड़िए। आज रात का पैगाम है, इबादत भी कबूल होती है, इबादत भी कबूल होती है, अल्लाह अपना हक माफ कर देता है। नमाज जब मैं छूट गई को गुनाह हो गया, एक आंसू बहा कर अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल्लाह तो अलग चीज़ है, हकूक़ुल इबाद ऐसी है, जब तक ये लोग हमें माफ नहीं करेंगे, हमें रब हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए बड़ा तवज्जो दिया करें, और इन रातों को जो रातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी, इनको ज़ाया मत किया करें। इबादत करें, इबादत का घर जाए, माँ जिंदा है, उसके कदमों को बोसा के देखे कि माँ बड़ी रातें आई दुआ कर देना, माँ बड़ी रातें आई दुआ कर देना। रब की रहमतें तो बरस रही हैं, अगर माँ के कदमों को पकड़ कर करेंगी तो आका की हदीस में से बहुत लग जाएगी, काम तो होना ही होना है, काम तो होना ही होना है, फिर तो पक्का हो गया। अगर खुद दुआ करेंगे कबूल हो या ना हो, माँ के कदमों को हाथ लगाकर भी कह देंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें हो जाएंगी। आका तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, चलो वालिदैन रुखसत हो गए, अब जिनके नहीं हो क्या करें। आका तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस है, तंदुरुस्त है, मोहताज है, रोज़ी नहीं मिल रही, वो रोजाना अपने वालिदैन को रूप साल सवाब कुछ न कुछ पढ़कर कर दिया तो अल्लाह उसे भी नहीं फरमा देगा। कितनी बड़ी बात है, जिंदा है तब भी, नहीं जिंदा है तब भी अल्लाह की रहमतें हैं। इतना तो हो कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर उनकी रोज़ साल सवाब कर दे तो अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाज़िल होती है। मोहताज की नहीं होती ज़माने में कभी, इस बात को याद रखिएगा। बड़े करम नवाज़ी की बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2 अशार सलात व सलाम के भी होंगे अपनी जगह, फिर उसके बाद सहरी का इंतजाम होगा। मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम शम्मे बज़ में हिदायत तेरा ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम जी सोहानी गाड़ी चमकाते बाका चांद जी सोहानी गाड़ी चमकाते बाका चांद रुसल रफरो जिनसा पहला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम गौसे आज़म इमाम मुर्तज़ा महलूका गौसे आज़म इमाम मुर्तज़ा महलूका गौसे आज़म इमाम मुर्तज़ा महलूका जलवाए शाने कुदरत तेरा ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत तेरा ओ सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी बने हारा, मुझसे खिदमत के कुदसी बने हारा मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम या सलाम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार, आज सलात तस्बीह की नमाज हमने यहाँ पर अदा की, तहज्जुद का वक्त है,
तेरी रहमत का वक्त है। फिर उसके बाद महफिल मिलाद हुई, बयान हुआ, सलातो सलाम हुआ, आना जाना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो अपने प्यारे में फिर माफी अता फरमा, इसको बहुत ज्यादा अजर व सवाब को अपने शान के मुताबिक अता फरमा। और जितने लोगों ने यहाँ आकर इस महफिल सलात तस्बीह को पढ़ा है, महफिल मिलाद और जो नमाज़ें हमें पढ़ी हैं और यहाँ जिक्र किया है, या अल्लाह उन पर तो अपना खुसूसी करम फरमा दे, यार उन पर अपना खुसूसी करम फरमा दे। जितने लोग मस्जिद में जमा है, या अल्लाह उन पर तो अपना खुसूसी करम फरमा दे। ये तेरी रहमत का वक्त है, तो कहता है इस पर मेरे आसमान पर है कोई मुझसे रहमत तलब करने वाला, मैं इस पर रहमत करूँ। या अल्लाह तेरे फरमान पर हम तुझसे रहमत तलब करते हैं, जिन पर तेरी रहमत बरस रही है उनका सदका हम पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमा। तो रिज़्क़ देने वाला है, तो कहता है कोई मांगने वाला, हम तुझसे रोज़ी मांगते हैं परवरदिगार, जिनको तो रोज़ी दे रहा है, तो अपने महबूब का सदका उन तमाम को जो यहाँ मौजूद है, हम सबको फिर इसके हलाल कसीर अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमा। फिर दौर है परवरदिगार, कोरोना ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, सब खत्म कर दिया, लेकिन परवरदिगार तेरे रहमत से हम नाउमीद नहीं है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तूने फरमाया मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, हम तेरी रहमत से नाउमीद नहीं है। रहमत के तरफदार या अल्लाह सारी मोहताजियत दूर फरमा कर हम तमाम को गनी फरमा दे, या अल्लाह तमाम को गनी फरमा दे, उसके हलाल कसीर अता फरमा। या अल्लाह कर्ज़ा बहुत चढ़ गया, लोग परेशान है कर्ज़ से, किसी को धमकियां मिली, किसी को क्या मिला, परेशान हाल तेरी उम्मत, तेरे महबूब की उम्मत परेशान हाल कर्जों से। अल्लाह असबाब नहीं कर्जा देने के लिए, पैसे नहीं कर्जा देने के लिए, माल नहीं कर्जा देने के लिए, अल्लाह तेरी तरफ देखते हैं, तू ही गैर से मदद फरमा दे। या अल्लाह तू ही गैर से मदद फरमा दे, तो सब के असबाब है, या अल्लाह तो असबाब मुहैया फरमा दे, या अल्लाह तो असबाब मुहैया फरमा दे। कहीं बेघर, या अल्लाह कोई आसरा नहीं है बेघरों के पास, तो 10 रुपए का आसरा हो, लेकिन बारगाह में तो तेरी हाजिर है। या अल्लाह जिसके पास कोई कमी नहीं है, इन्नल्लाह कुल्लु शैइन कदीर है, तो कुल फरमा दे, कान हो जाए ऐसा कुल की रहमत हम परवरदिगार बेघरों को घर अता फरमा दे। या अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा दे। या अल्लाह जो घर है जिनके पास, उनके घर में खैर बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जो बीमारों को नहीं कर, बीमारों को या अल्लाह सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह जो औलादों में नहीं कर, साले औलाद अता फरमा, तो साहिब औलाद उनकी औलाद को नेक फरमा, तमाम मुसलमानों के बच्चों को गरीब दुनिया से माला माल फरमा, तो बड़े बड़ा जान लड़कियां अपने घरों से अच्छे लोग रिश्ते नसीब फरमा, जो बेटियां अपने घरों में जा चुकी हैं उन्हें अपने घरों में शादी बात फरमा, हर किसी की परेशानी से महफूज फरमा। या अल्लाह एहतिकाफ में लोग बैठे तो बड़ी मोहब्बत से बैठे हुए एहतिकाफ में, अल्लाह तमाम एहतिकाफ वालों पर अपना खुसूसी करम फरमा। या अल्लाह इनके घरों में भी खुशहाली अता फरमा, इनकी घरों की दिलचस्पियों को दूर फरमा, इनकी घरों की मोहताजियों को दूर फरमा, इनकी घरों की लड़ाइयों को दूर फरमा, इनकी घरों की कर्जदारियों को दूर फरमा, इनकी घरों की मोहताजियों को दूर फरमा, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद और मोहब्बत नसीब फरमा, शैतानों के शर से महफूज फरमा, मुफसिदीन के फसाद से महफूज फरमा, गुस्ताखों और बेदीनों के सोहबत से महफूज फरमा, सिरात मुस्तकीम का रास्ता अता फरमा। या अल्लाह जो तेरे घर में तेरे एहतिकाफ वालों के लिए जिन्होंने खाना दिया, लंगर दिया और बड़ी रात के लिए दिया, अल्लाह मिठाइयों के सबके साथ सब मिल बांट के ताबत करते हैं। अल्लाह जो देते हैं तेरी बारगाह में, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं, एक का 70 का वादा है ना, एक के बदले तो आज की रात इससे मांगते हैं, अल्लाह 70 को थोड़ा जहन तो अपने शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह तो अपने शान के मुताबिक करने अता फरमा, जिस तरह तेरे घर को दे रहे हैं, अल्लाह एक मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं जान से, माल से, पैसों से, अल्लाह तो अपनी रहमत से उन्हें नवाज दे। या अल्लाह उनकी नस्लों को भी गनी फरमा दे, उनके कारोबार में, माल में और आपने बरकत और वसत अता फरमा दे। परवरदिगार जो बच्चे मस्जिद के एहतिकाफ वालों की को खाना डाल रहा है, को खिला रहा है, कैसे कोई उनको गर्ज नहीं है, सिर्फ तेरी मोहब्बत है, कोई गर्ज नहीं है, उनको आकर खिदमत करते हैं, कोई बर्तन धोता है, कोई खाना लगाता है, क्या क्या घर की खिदमतें हो रही है, अल्लाह तो इनकी खिदमतों को कबूल मंजूर फरमा। आगे से महफूज फरमाता सीधे अपने अपने महबूब की मोहब्बत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा, और उनके घरों में भी खुशहाली अता फरमा। कि अल्लाह उनके माँ बाप को सेहत अता फरमा, तो उनके माँ बाप नहीं है तो उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार मस्जिद की इंतजामिया है, फाजिल साहब है, खुसूसन सदीक भाई हैं, इन पर भी अपना खुसूसी करम फरमा। कि अल्लाह ने सेहत अता फरमा, इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। हमजा ने अपने वालिदा की मग़फ़िरत के लिए कहा, मोहम्मद अब्बास ने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए कहा, नवीद ने सेहत के लिए, वसीम ने सेहत के लिए, अपनी अपनी अहलिया के लिए, अल्लाह तमाम को सेहत अता फरमा, तमाम
की परेशानी को दूर फरमा। वक्त मतलब सबका नाम नहीं ले सकते, सब लोगों ने मुझे कहा है कि अल्लाह जिसने भी दुआ के वास्ते मुझे या रब कहा, जिसने भी मुझे दुआ के वास्ते या रब कहा,